हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप साध संगत जियो, गुरु शब्द दी विचार आरंभ करिए। प्रथम सिनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो गुरु रूप साध संगत जियो, एकाग्रता प्रदान करने। अज का सोरठ राग के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का जो महान वाक आया है, इस विच ऐसे विषय नूं सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत की समस्या है। मनुख का कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख का कुछ लोभ का जगत है। ये जीवन दे ढंग दो ही ने, लोड़ां विच जीवना, लोभ दे च जीवना। तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने। अक्सर 99% मनुखों दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां। लोभ किसी का भी पूरा नहीं होता, लोभ का सुभाव है कि पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहता है, अधूरा ही रहता है। जगत दे विच पूर्ण शांतमयी जीवन वही जीवते ने जो लोड़ां दे च जीवे, लोभ दे च नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होता। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर 3 साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। 3 साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना, मंगता। तीजा साधन खोना, लुटना।
ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਖੋ ਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ। ਜੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤਾ, ਜਾਚਕ, ਭਿਖਾਰੀ। ਔਰ ਜੋ ਖੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰੇ, ਡਕੈਤ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੋ ਕੇ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕੇ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣੀ, ਮੰਗਣਾ। ਮੰਗ ਕੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਮਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰਕੰਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅਮਰਕੰਟਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਅਮਰਕੰਟਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 70 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, 70 ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਰਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਰੂਪ, ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਰੂਪ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ ਉਤਨੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਸ਼ਿਵ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਗਤ, ਲੇਖਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਲਸੀ
जैसे मथुरा दे च आए रामायण की कथा करन, तो हुण कुदरती गल है मथुरा नगरी श्री कृष्ण की है, जिमें अयोध्या श्री राम की है। जिमें अमृतसर नूं असीं रामदासपुरी कहने, रामदासपुर नाम भी पहले यही सी। गुरु रामदास जी की नगरी है। अयोध्या राम की नगरी है। बनारस शिवा की नगरी है। मथुरा कृष्ण की नगरी है। मथुरा विच आए महात्मा तुलसी तो लै गए श्रद्धालु इन्हों कृष्ण जी के मंदिर दे, द्वारकाधीश मंदिर दे। सारिया ने डंडौत की, तुलसी ने नहीं की। तुलसी ने नहीं की। पूछा गया, आप भगत हो, सिर्फ भगत ही नहीं भगती का संदेश देंदे हो, उपदेश देंदे हो, कथावाचक हो। सिर्फ कथावाचक ही नहीं, तुसी बहुत बड़े विद्वान हो, लिखारी हो। आपने डंडौत नहीं की, मत्था नहीं टेकिया। तो हुण जो कुछ तुलसी कहते ने उन्होंने ही बोल मैं थोड़े सामने रखा। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ। बड़ी सुंदर छवि है, मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ा सोहना प्रभाव पै रहा है। होंठा नाल मुरली लाई हुई है, सिर ते मुकुट है, बड़ी सुंदर पोशाक है, बड़े कीमती गहने ने। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने में जो धनुषबान होए हाथ। तुलसी दा सिर ते तां झुक सकदा है जे हाथ दे च धनुषदान हो, धनुषबान होवे। मैं धनुषधारी दा पुजारी हाँ, मुरलीधर दा पुजारी नहीं। इहदे हाथ ते मुरली है। मैं अर्ज करा, मुहम्मद साहब ने जिस उम्मत नूं जन्म दिता, उन्हां सारियां दा इक्को ही नाम है, मुसलमान। मुसलमान। महात्मा बुद्ध ने जिस उम्मत नूं जन्म दिता, उन्हां सारियां नूं कहंदे ने भिक्षु। भिक्षु। और धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जिस उम्मत नूं जन्म दिता, उन्होंने आख्या जाता है सिख, गुरसिख, गुरु दा सिख। सिख वेदां शास्त्रां उपनिषदां दे राही जिस उम्मत का जन्म होया, धारा एक नहीं है। कोई सन्यासी ने, कोई बानप्रस्ती ने, कोई ब्रह्मचारी ने, कोई बैरागी ने, इस तो इलावा हजारां शाखावां ने, एक धारा नहीं है। और धर्म ग्रंथां दियां विचारां भी अलग अलग ने। जैसे इशारतन धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। शास्त्र ते 6 ने। इन्हां 6 शास्त्रां दे आचार्य, लिखारी, गुरु भी 6 ने। न्याय नूं जन्म देंदे ने गौतम, सांख नूं जन्म देंदे ने कपिल, मीमांसा नूं जन्म देंदे ने जैमिनी, जोग नूं जन्म देंदे ने पतंजलि। और इसी तरीके दे नाल वेदांत नूं जन्म देंदे ने ऋषि वेद व्यास। और इसी तरीके नाल 6वें गुरु कड़ाद। ये 6 गुरु 6 शास्त्र ने, पर महाराज कहते ने इन्हां दे उपदेश भी 6 ने, एक नहीं। 6 घर
छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेश अनेक। इन्हां छे गुरुआं दा गुरु एक परमात्मा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ज्ञान जिधरों भी आउंदा है सब परमात्मा। ये ज्ञान दियां धारावां क्यों बन जांदियां अलग अलग? दरअसल बारिश हो रही है, किसी कोल कौली है, किसी कोल गिलास है, किसी कोल लोटा है, किसी कोल थाली है, किसी कोल वड्डा थाल है, किसी कोल डोल है, किसी कोल वड्डा पतीला। चूंकि भांडे अलग अलग ने, भांडियां की बनावट अलग अलग है, तो पानी बह रहा है, भांडियां की बनावट करके पानी का रूप उसके अंदर वैसा ही हो जाता है। कौली दे अंदर कौली वर्गा हो गया, लोटे दे अंदर लोटे वर्गा हो गया, थाल दे अंदर थाल वर्गा हो गया, डोल दे अंदर डोल वर्गा हो गया। पर सारिया भांडियां दे जिहड़ा पानी है वो एको ही बदलता है। गुर गुर एको। भावें छे गुरु ने, इन्हां दे राही जो ज्ञान प्रगट होया है, इन्हां छे गुरुआं दा गुरु वो एक ही है। गौतम, कपिल, कणाद, पतंजलि, जैमिनी और ऋषि वेद व्यास, इन्हां छे गुरुआं दा गुरु वो एक है। गुर गुर एको। इत्थों दावे नाल गुरु नानक देव जी कहते ने ज्ञान सारा परमात्मा तो आंदा है। तो फिर आदि गुरु भी परमात्मा ही है। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो। अज तक किसी एक भी ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं आख्या ये ज्ञान मैं अपने आप प्राप्त किया है। सब कहते प्रभु तो मिले, परमात्मा तो मिले। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। हुण गुरु नानक देव जी महाराज इसे ही वाक दे च मंग करते हैं, बाबा जय घर कीरत करते कीरत होए। जिस घर दे च कीर्ति चल रही है, जिस घर दे च सत्संग चल रहा है, ये करते तेरी गल चल रही है, तेरियां बातां चल रही ने, तेरा ज्ञान चल रहा है, तेरी ध्यान साधना चल रही है। बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई होए। उस घर दे च मैनू रख, मैनू ओ थां बख्श जिथे तेरी कीर्ति हो रही है, जिथे तेरा जस हो रहा है, जिथे तेरी महिमा हो रही है, ताकि मैं सुना सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नेता। तो मैं अर्ज कर रहा सी, एको ही उम्मत नूं जन्म दिता है गुरु नानक ने। सिख सिख केवल सिख है। एको ही उम्मत नूं जन्म दिता है। मुहम्मद साहब ने मुसलमान केवल मुसलमान। एको ही उम्मत नूं जन्म दिता है महात्मा बुद्ध ने, भिक्षु भिक्षु। एक तरह की उम्मत सनातन मत दे च नहीं है। कोई आर्य समाजी ने, कोई देव समाजी ने, कोई है सनातनी ने। फिर इन्हां दियां साधुआं दी अलग अलग शाखावां ने। अगर असल देखना हो तो जब इन्हां दियां छाइयां निकलदियां ने कुंभ दे उदों पता चलता है कितने फिरके ने। अलग अलग टोल लड़ भी पैंदे, झगड़ा भी हो जाता है। इस कुंभ तो पहले कुंभ दे 42 साधु मारे गए सन। नांगे साधुआं दी ते निरंजनी अखाड़े की जंग हो गई सी, लड़ पए सी। एक ने कहा पहले असी इशनान करना है, दूजे ने कहा पहले असी करना है। कुंभ लड़ पे। हैरानगी की गल, कुंभ दे दिन पाप
धोण वास्ते आए सन, उत्थे ही पाप कर बैठे। 42 बंदे कतल हो गए। जन्मां जन्मांतरां दे पाप धोण आए सन, सब तो वड्डे पाप उत्थे ही कीते, सब तो वड्डे गुनाह उत्थे ही कीते। एक शाखा नहीं है, अनंत धारावां ने। ये ओ दरिया है जो अनंत धारावां दे च पहाड़ तो निकलदा, फिर मिलदियां भी नहीं आपस, अलग अलग ही चलदियां। तो मैं अर्ज कर रहा सी, मनुख दियां लोड़ां ने और लोड़ां दे नाल संबंध मनुख तोड़ नहीं सकता। लख यतन करे, मैनू नहीं चाहिदा पानी, पर शरीर मंगेगा, लोड़ है। लख मैं उच्ची आवाज नाल आखा मैनू नहीं चाहिदा भोजन, पर शरीर नू भुख लगेगी, मंगेगा। शरीर नू गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, भुख लगती है, प्यास लगती है। कुछ तो वड्डियां वड्डियां शरीर दियां लोड़ां ने, कुछ छोटियां छोटियां होर बथेरियां। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हुंदा, लोड़ां दा कोई त्यागी नहीं है, कोई त्यागी नहीं। गल मैनू भुलदी ही नहीं। 15 दिन में कस्तूरबा ग्राम इंदौर दे संत विनोबा भावे दे होंदियां कथा कीती सी। सवेरे मैं इमली साहब गुरुद्वारे च करदा सी, शामी कस्तूरबा ग्राम जो संत विनोबा भावे जी का आश्रम सी, मैनू कहन लगे सानू भी गुरबाणी सुणाओ। मैं जरूर सुणावांगे। मैनू उन्होंने 35-40 किताबां भी अपनियां लिखियां हुई भेटा च दित्तियां। सुभाविक बजुर्ग सन। धन माया मेरे अगों आई, तो चूंकि त्यागी साधुआं दा आश्रम सी, परोपकारियां दा सेवा भाव, जमीन कट्ठी करके ते गरीबां दे च वंडनी, भूदान। तो ओ माया में विनोबा भावे दे झोली च पा दी, एकदम सुट दी मिट्टी। मैं कहा इस तरह क्यों, इन्नी नफरत, मिट्टी आई है। मैं कहा मिट्टी नूं हथ लांदे हो कि नहीं? मिट्टी नाल ते तुहानूं हथ भी धोने पैंदे ने, मैं देखदा। मिट्टी नूं हथ लांदे हो कि नहीं? कि जे धन भी मिट्टी है तो की हर्ज है, की हर्ज है? मैनू कहन लगे मनुखता ने मिट्टी नूं अजे इतनी अहमियत नहीं दिती। मिट्टी तो बने हुए कागज नूं, इस करंसी नूं बड़ी अहमियत दे दी है। इहदे च अहमियत छुपी हुई है बड़ी। ये किधरे लोभ ना पैदा कर देवे, इस वास्ते सुनते। मैनू अजे तक याद है। पर लोड़ां दा मनुख त्याग नहीं कर सकता। लोड़ां है, मैं लख कह दियां नहीं चाहिए मैनू पानी, मेरी प्यास आवाज मारेगी पानी चाहिए चाहिए। मैं लख ठोकर मार देवां भोजन दे थाल नो, मेरी भुख उच्ची आवाज नाल मंगेगी भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। और इस तरीके दियां होर सैकड़े लोड़ां। फिर लोड़ां नूं पूरा करन दे 3 साधन ने। पहला किरत करनी, मेहनत करनी। मेहनत करके अपनी लोड़ां दी पूर्ति करनी। ते जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदा उहनूं कहंदे ने किरती। दूसरा मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी। क्योंकि अज दा वाक इस तरह का आया तो मैं अर्ज करा, अछूता जिहा वाक है। किस हों जाची किस साल आई, जाचण मंगण तो गल चलती। अज का हुक्मनामा इस तरह का।
इसने ही ख्याल दिते ने मैनू। अज दा वाक ही ऐसा है। लोड़ां दी पूर्ति करन दा पहला ढंग है किरत करनी, मेहनत करनी। उन्होंने कहा जाता है किरती। दूजा ढंग बड़ा व्यापक पद्धर ते सारी दुनिया दे च मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी। तो इस नाल मंगतियां दा जन्म होया, भिखारियां दा जन्म होया, और धार्मिक जगत दे च भी मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी है। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत नूं कहा भिक्षु, भिक्षु, भिक्षा मंग के गुजारा करना। इस वास्ते मैं कई दफा कहा कि महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर दा धर्म ते इस तरह के होर त्यागियां दा धर्म व्यक्तिगत धर्म है प्रभु नाल जुड़न दा वसीला है। ये व्यक्तिगत धर्म है, समूहक नहीं, सारियां दा नहीं। कारण अगर सारे भिक्षु बन जान, चलो मन लेंदे आ, सारे ही महात्मा बुद्ध की गल मन लैन, फिर सारे ही भिक्षु बन जान, फिर कौन देगा? देने वाला कौन होगा? किसने देना? सारे ते मंगते, सारे ते मंगण वाले, फिर कौन देगा? तो सारियां दा धर्म नहीं है। अगर सारे ग्रस्त दे त्यागी बन जान तो 300 साल तो बाद बंदा ते जमीन ते एक भी नहीं लभेगा, गल खत्म हो जाएगी, मनुखता तो खाली हो जाएगी जमीन। अगर सारे ही ग्रस्त का त्याग कर दें। महात्मा बुद्ध का धर्म अजीम ने, महान ने, बड़े विचारक ने, उन्हों का धर्म व्यक्तिगत धर्म है, समूहक धर्म नहीं है, सारियां का धर्म नहीं है। स्वामी महावीर का व्यक्तिगत धर्म है, समूहक धर्म नहीं है। सारे ही ग्रस्त का त्याग कर दें, थोड़े दिनों तो बाद ही जमीन मनुखों तो खाली हो जाएगी, शेरां तो खाली नहीं होगी, क्योंकि शेर ते त्याग नहीं करेंगे, वो प्रकृति के नियम नाल जीणगे। गवां तो खाली नहीं होगी, कुत्तियां तो खाली नहीं होगी, सप्पां तो खाली नहीं होगी, पंछियां तो खाली नहीं होगी। ये जमीन मनुखों तो खाली हो जाएगी। क्यों खाली हो जाएगी? त्यागी खाली कर देंगे। ग्रस्त का त्याग व्यक्तिगत धर्म है, व्यक्तिगत, समूहक नहीं है। भिक्षा मंग के उपजीविका चलानी व्यक्तिगत धर्म है धर्म है। बहुता समा मेहनत दे च जाया होंदा है, भजन करिए। मैं तो एक ऐसा भी देखा, क्योंकि अमृत वेले थाईलैंड दे 5 बजे भिक्षु निकलते हैं भिक्षा मंगण, उस टाइम निकलते हैं। सूरज निकलता है, उस तो पहले पहले मंदिरों च वापस चले जाते हैं, अपने आश्रमां दे वापस चले जाते। लोकी अपने घर के बाहर खड़े होंदे हैं, हर दूजे तीजे घर दे देण वाले खड़े होंदे हैं, देंदे हैं। उत्थे ही मैं सोचिया सी, आखिर मंगण दे च भी ते मेहनत ते होंदी है। उठे आ, खप्पर लिया, बूए बूए ते जा रहे हैं, मेहनत ते है, मेहनत ते है। लोड़ां दी पूर्ति 3 तरीकों नाल होंदी है। मेहनत करके, जो मेहनत करके पूर्ति करते हैं किरती, जो मंग के पूर्ति करते हैं भिक्षु, भिखारी, मंगते, और जो खो के पूर्ति करते हैं, लुट के पूर्ति करते हैं चोर, लुटेरे, डकैत। ये 3 साधन ने लोड़ां दी पूर्ति करनी है। या तो खो के करनी है, लुट के करनी है, डाका मार के करनी है। लोड़ां ने कितों पूरी करिए? खो के करांगे, लुट के करांगे, डाका डाल के करांगे, मंग के करांगे नहीं, मेहनत करके करांगे। मेहनत
धन गुरु नानक ने जो तरीका सानू दिता है, खा गाल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। उदम करेंदियां जीव तो, कमाउंदियां सुख वंच, ध्यावदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। दूजा टोला भिक्षुआ का बहुत वड्डा है। गोरख ने जो पैदा किए जोगी भिक्षा मंग के गुजारा कर, भिक्षु भिक्षा मंग के गुजारा करते, जैनी साधु भिक्षा मंग के गुजारा करते, सूफी फकीर भिक्षा मंग के गुजारा करते। की खोट, करना थोड़ा है, मंगना बहुत ज्यादा, ਉਹਦੇ बदले चाहिदा बहुत ज्यादा है। सेवा थोड़ी, मांगना बहुत। 10% दुकान दे वस्तु दे नफा नहीं रखना, 20% भी नहीं, 100% लुटना है, अगले दे कपड़े लाने। जिस तरह किरत धर्म दी भी हो सकती है कि किरत नूं भी बेईमानी ते खड़ा किया जा सकता है, इस तरह भिक्षु मंगतियां दी दुनिया दे विच भी अलग अलग मंगते ने। एक ते ओह जिन्हां ने अपनी जिंदगी नूं परमात्मा दे लेखे लाया, शरीर दी लोड़ां लई मंगते हैं। एक ओह गली गली दे च मंगते ने, बाजार दे चौक दे च। अपनी जिंदगी नूं परमात्मा दे दाव ते नहीं लाया, बस जिंदगी नूं ही मंगण ते लाया, और कोई काम ही नहीं। मंगना है, मंगना है, मंगना ही जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं। भिक्षु जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, साधन है भिक्षा मंगना। भिक्षा मंगना ही लक्ष्य है। भिक्षा मंगण लई जिंदगी है। भिखारी, मंगते, गदागर, ये नीवी श्रेणी दे। फिर लुटेरा तबका, चोर तबका, डकैत तबका है ही नीवी तबके, वो तो है ही नीवा तबका। लोड़ां दी पूर्ति ये 3 ढंग नाल होंदी है, 3 ढंग नाल। गुरु नानक ने सानू किरती बनाया, किरत कर, उदम करेंदियां जीव तो। फिर ऐसा भी कहते ने, मंगण गया सो मर रहा, मंगण मोल ना जाए, मांगत मान ना पाया। ना मांग, भिखारी ना बन, भिक्षु ना बन। इस तरह की उम्मत नूं मैं नहीं जन्म देना। किरत कर, मेहनत कर, दिमागी मेहनत कर, शरीरक मेहनत कर, कुछ भी कर। हैरानगी की गल, सारी जिंदगी गुरु नानक ने भरमण दे च लगाई, उपदेश ते संदेश दे च लगाई। बिरध अवस्था दे च आखिरी समय करतारपुर दे च हल पे चलाते ने, बीज पे बीजते हैं, खेती पे करते हैं। जगत दिता, जगत नूं दस दिता, मैं किरत नहीं छोड़ी, मैं काम नहीं छोड़े, मैं धंधा नहीं छोड़े, ये तो मैं करने। आखिरी दम तक कबीर कपड़ा बुनते रहे, बुनते रहे। जब चेलिया ने ही कह दिता कबीर नूं, हुण ते छड्डो, थोड़ी प्रसिद्धि बड़ी हो गई है, चारों पासे लोकी थानू भगत भगत करके पूजते ने, सन्मान देंदे ने, हुण ते छड्डो। कहने लगे नहीं, हुण ते मेरी किरत भी कीर्ति बन गई है। हुण जद मैं खड्डी चलाना तो खड्डी की धुन पैदा होती है, मेरे मन दे चों प्रभु की धुन पैदा। हुण ते कपड़े बुनना सेवा बन गया, मनुखता की सेवा बन गई। हुण क्यों छोड़ा? पहले मैं सिर्फ लोड़ां की पूर्ति वास्ते कपड़ा बुनदा सी, हुण ते कपड़ा बुनना सेवा बन गया। हुण क्यों छोड़ा? आखिरी समय तक कपड़ा बुनते रहे, नामदेव कपड़ियां नूं छिमदे रहे। मैं फिर अर्ज करा, मनुख लोड़ां दा त्यागी नहीं हो सकता, लेकिन मनुख लोड़ां दे च नहीं जीवदा, लोभ दे च जीवदा।
ਲੋਭ ਦੇ। ਤੇ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਤਲ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਿਉਂ ਕੋ ਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਲੋਭ ਧਾਵੇ ਦੇ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਭਖ ਅਵਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਲੋਭ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ तमाम ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਭ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਦੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। जैसे भुख दी ते सीमा है, 2 रोटियां मैं नहीं खावांगा तो 4 खा लेंगा, चलो 4 नहीं तो 8 खा लवांगा। सीमा तो है ना, भुख दी सीमा है। स्वाद दी सीमा नहीं है। हुण बंदा सारा दिन खांदा रहेगा, घंटे घंटे च खांदा रहेगा और अद्धे घंटे च खांदा रहेगा। स्वाद दी सीमा नहीं है, भुख दी सीमा है। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੋਭ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੋਭ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੰਗ ਕੇ या लुट के खो के। लेकिन लोभ की पूर्ति होंदी नहीं, किरत नाल नहीं होगी। किरत नाल लोड़ां की पूर्ति होगी, मंग के भी नहीं होगी, खो के भी नहीं होगी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀਣੀ ਗੱਲ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗ, ਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗ? ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਉਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਮੰਗੇ।